I wanted content to speak. I wanted my acting to speak for myself. If I'm performing good, even if the screen time is less, I'll be appreciated, I'll be noticed. And to debut under a legendary director like Mr. Rajkumar Santoshi says, it's like a dream come true. Namaste, this is Anuj, and you're watching me on peepingmoon.com. Hi guys, this is Ankita. You're tuned into peepingmoon.com, and today for Gandhi Godse, we have Anuj Seni with us. Thank you for having me here. Anuj, unconventional choice. I mean, why? Why a film where already, not just because of a film which is of this magnitude or nature, where we're talking about the freedom, the fighter, the ideologies, but normally people tend to gravitate towards characters which put them in the limelight. You deliberately chose to take a step back and let the film do the talking rather than you. Because see, I wanted to debut in a content-driven film. I didn't want to debut in a film where I'm driving swanky cars, doing dance numbers, chilling in the pool or stuff like that. I wanted content to speak. I wanted my acting to speak for myself. If I'm performing good, even if the screen time is less, I'll be appreciated, I'll be noticed. And to debut under a legendary director like Mr. Rajkumar Santoshi says, it's like a dream come true. तो इसलिए मैंने कुछ अलग हटके करा. टिपिकल जैसे सब करते हैं, मैंने सोचा थोड़ा अलग करते हैं. अनुज, फर्स्ट ऑडिशन कैसा था? अगर आपने दिया है तो, क्योंकि संतोषी साहब ऐसे ऑडिशंस तो लेते नहीं, तो उन्होंने आपको स्पॉट कहाँ करा? As I speak, I have given more than 3,000 auditions. 3,000 auditions मैं दे चुका हूँ. I started my career as a junior artist for a Dharma ad. 200 लोगों में से मैं एक था. तो ऑडिशंस तो बहुत दिए थे. तो ऐसे ही कहीं पे ऑडिशंस दिया होगा तो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर है कश्यप चंदोक. ओके. ही कॉल्ड मी. ही वाज लाइक, आई एम कास्टिंग फॉर अ फिल्म जिसमें मेरे को 1940s 1950s के एरा का एक लड़का चाहिए. अब आई हैड ऑल द पिक्चर्स विद वेयरिंग जैकेट्स और क्लोथ्स लाइक दिस. तो आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस. हिज नेम इज़ आसिफ. आई वेंट टू आसिफ्स हाउस. वहाँ पे मैंने एक पुरानी शर्ट, एक स्कार्फ वाफ, बाल बाल ऐसे सेट वेट करे. देन आई सेंड हिम दोज पिक्चर्स. ही शोड दोज पिक्चर्स टू राज सर. देन आई हैड अ मीटिंग विद राज सर. राज सर नरेटेड मी द होल स्टोरी. And after that, I got locked. As a character, what was exciting for you to come in a narrative which can be also turned to be a controversial film for that matter? See, as a character, like when I heard the narration, I was blown away by the narration because it's not like a typical film. So my character, first of all, it was like I was playing someone from 1940s and 50s. We are not used to doing Exactly. that. We don't, हमें वहाँ का लहजा, वो भाषा, वो कुछ आइडिया नहीं है. बॉडी लैंग्वेज, मूवमेंट, क्लोथ्स और वो कपड़े पहन के कंफर्टेबल होना, तो सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग था, सब कुछ बहुत नया था, सब कुछ बहुत चैलेंजिंग भी था. बट देन बिकॉज ऑफ हिज गाइडेंस और हमने रिहर्सल्स करी थी, तैयारी करी थी, होमवर्क बहुत करा था, तो हो गया अच्छे से. आपसे तो ये सवाल पूछना बनता है. दो ऑफ कोर्स इट्स अ फिक्टिशियस टेक ऑन गांधी एंड गोडसे. एक सर्टन सेट के बाद हम फिक्शन पे बैंक कर रहे हैं. आप कैसे एसोसिएट करते हैं कैसे सब्जेक्ट के साथ, जहाँ पे मैं नहीं कहूँगी साइड्स लेनी है, लेकिन मोर और लेस आपका एक विचारधारा होनी चाहिए कि आपने, अगर आपको किसकी आइडियोलॉजी के साथ आप रेजोनेट करते हैं, अगर मैं आपसे इजी पूछूं तो? See, if I talk about the film, we haven't glorified any of them. We आई नो, just आई सीन द ट्रेलर. उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आप गांधी या गोडसे में से या किसी को बुरा कह रहे हैं या किसी को अच्छा कह रहे हैं. तो ऐसा लाइक हम बचपन से स्कूल टाइम से पढ़ते हुए आने गांधी जी के बारे में. जी. बट सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सालों पहले बैन लगा दिया था गोडसे के कुछ लेटर्स को पब्लिक डोमेन में आने से, और कुछ साल पहले ही वो बैन हटा है. बहुत पहले से बैन लगा हुआ था. तो a lot of people don't know much about Godse. Exactly. What his thought process was, what his mindset was. तो ये जब हमने फिल्म बनाई है तो उसमें बहुत सारी गोडसे की चीज़ें लोगों तक पता चलेंगी जो कि लोगों को पहले नहीं पता थी. तो मेरी नज़रों में अगर आप पूछोगे, गांधी जी अपनी जगह ठीक थे, गोडसे अपनी जगह ठीक थे. Just like that. यहाँ से आगे का सफ़र आप अपना कैसा देखते हैं? क्योंकि जब हम इस तरीके की फिल्म से डेब्यू करते हैं तो एक कहीं ना कहीं एक इमेज भी साथ में रह जाती है, चाहे अच्छे के लिए हो चाहे कैसे भी हो. तो वो डिफ़िकल्ट लगेगा आपको वो मोल्ड से निकलना. बट कंसिडरिंग आप इतने एक्सपीरियंस और इतने एड्स के साथ आते हैं, आप कैरेक्टर स्वैप कर सकते हैं, ये तो मैं मान सकती हूँ. By the grace of God, I've already signed my second film before the release of my first one. तो चल रहा है. आप लोगों का, मीडिया वालों का सपोर्ट चाहिए, पब्लिक का सपोर्ट चाहिए, हो जाएगा. हो जाएगा. Hoping for the best, working for the best. लास्टली अनु,
इस इंडस्ट्री में जहाँ पे हम एक बैक सपोर्ट के साथ नहीं आते हैं, यू ऑल्सो हैव तनिषा विद यू हु कम्स फ्रॉम द फिल्म फैमिली, एंड मैंने उनसे भी बात करी, उन्होंने भी मुझे बोला कि उनके लिए भी ये एक डिसीजन फिल्मों में आने का एक बहुत ही पहला का सपना था, लेकिन बहुत वक्त लगा उनको अपने फादर को इस कहने में कि मैं ये करना चाहती हूँ। आप क्योंकि बाहर के लेंस से भी ये मुद्दा देख सकते हैं, आपको कैसा लगता है कि ये इजी रहता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं, कि आप इन सब चीज़ों में जो कॉन्वर्सेशंस आपको पता है आपसे ये सवाल पूछा ही जाएगा रिपीटेडली? तो देखो ऐसा होता है, लाइक सी इफ आई टेल यू पर्टिकुलरली अबाउट माई सेल्फ, आई एम फ्रॉम दिल्ली, सो आई वॉन्टेड टू गेट इन टू एक्टिंग सिंस चाइल्डहुड। बचपन से ही कहीं ना कहीं एक इंक्लिनेशन थी कि एक्टर बनना है, बट देन माई पेरेंट्स वर लाइक बेटा फर्स्ट कंप्लीट योर एजुकेशन, आफ्टर दैट डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। Exactly. सो आई डिड सिविल इंजीनियरिंग, आई एम एन इंजीनियर। आफ्टर दैट आई मूव टू बॉम्बे। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है, एवरी डे 1000 पीपल आर कमिंग, all of them are good looking in their own ways, all of them are talented, so there's a lot of competition, but I feel कि अगर आप अपनी मेहनत करते रहो, आप अपने रास्ते पे चलते रहो, अपने ऊपर काम करते रहो और पेशेंट रहो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंट रहो, तो हो जाती हैं अच्छी चीज़ें, हो जाती हैं। एंड कहीं पर भी आपको कभी ऐसा इस तरीके की कोई फीलिंग आई या सेट्स पे लगा कि शायद मैं बाहर से हूँ एंड मे बी तनिषा इंटरनली अपना डेब्यू कर रही हैं, क्या क्या ऐसा कोई डिफरेंस लगता है? नॉट इवन फॉर अ सेकंड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को लग रहा था कि तनीषा से बेटर ट्रीटमेंट मुझे मिल रहा है सेट पे, नॉट इवन किडिंग। बट दैट्स गुड, दैट्स हाउ अ हेल्दी एनवायरनमेंट इज। तो यहाँ पे 1% भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उसको कुछ अलग मिल रहा है या मेरे को कुछ अलग मिल रहा है, बल्कि मेरे को, आई एम बीइंग डेड ऑनेस्ट, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं राज सर का बेटा हूँ। आफ्टर ऑल अच्छे एक्टर्स को पहले रखा जाता है, और एक्टर्स यही एक आई थिंक तरीका होना चाहिए किसी भी फिल्म को बनाने का, कि जहाँ पे आप टैलेंट को पहले रखें और बाद में किसी और चीज़ को। यहाँ से आगे आप क्या देख रहे हैं अपने लिए बस अनुज, ये बताइए। यहाँ से आगे बस फिल्में करनी है। मैं चाहता हूँ कि हर 2 महीने में एक मूवी है, हर 2 महीने में मैं आपके साथ एक इंटरव्यू करूँ। कोई ऐसा जॉनर जो आप करना चाहेंगे? See, as an actor, since I've done theatre also, I did theatre with Rajat Kapoor and Vinay Pathak sir. अरे तो बहुत बढ़िया। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर ऑल द जॉनरास। मेरे को रोमांटिक भी करना है, मेरे को विलन भी प्ले करना है, मेरे को थ्रिलर भी करना है, क्राइम भी करना है, मुझे सब कुछ करना है। इट्स लाइक दैट। तो हम होप करते हैं कि जब हम नेक्स्ट मिलें हम इन्हीं में से किसी एक जॉनर की फिल्म अनुज के साथ डिस्कस कर रहे हों, एंड आई होप ये फिल्म, क्योंकि इतना अनयूजुअल चॉइस है लेकिन इसका रिसेप्शन बहुत यूजुअल, लवली और हार्ट वार्मिंग हो आपके लिए। थैंक यू you, सो thank you मच।